Now, this is Social Science with Anand. As per my promise, now I am taking the chapter 3 of the class 9th, Nazism and the Rise of Hitler. It is one of the important chapter of the history, and this chapter is also popular one, very interesting. Many questions are coming in other competitive examination, that in what way the Hitler rise and in what way he ruled over the Germany at that very time when German got defeat in the First World War, and after that Warsaw Treaty, they have to pay a lot of money, lot of compensation, and many other penalties also imposed on German. At the last moment, that is in the year 1918, when German declared defeat in the First World War, Weimar, birth of Weimar Republic. This is the pronunciation will be Weimar. Weimar Republic, burden of peace treaty. Burden of peace treaty, what does it mean? When German was declared a war criminal, then League of the Nation imposed, and German have to enter into the Warsaw Treaty. The spelling is Varsailles, but in pronunciation it is in Warsaw. What was the important points of the treaty? That German had to give near about 26% of the coal and 75% of the iron ore to France, Denmark, Poland, and German also lost the 13 colonies, that is 10% population from the islands, as well as 6 billion compensation had to be given by the Germany. So that burden was imposed on the Weimar Republic. Why I say Weimar Republic? When at the end of the war, the monarch removed himself, National Assembly make the Weimar Republic, and this country become the Democratic Republic. After becoming the Democratic Republic, what happened? There was the effect of the war. Before the 1980, when Germany was fighting with other countries of the world, there was the wrong social media and this newspaper. It was printed that we are courageously fighting with allied countries and we will certainly get success. The factual position was that they were continually defeating the war. In the trenches, so many soldiers were laying, and the dead soldiers' hand and other part of the body was eaten by rodents. चूहों के द्वारा उनकी खाई जा रहा था. तो इस तरह से बर्डन किसके ऊपर आ गया? वाइमार के ऊपर. और ये वाइमार रिपब्लिक है, इनके कारण ही इन सोल्जर की ऐसी दुर्दशा हुई. ऐसा होने के बाद जितने भी कंजर्वेटिव थे, जिन लोगों ने कंजर्वेटिव ने दूसरे थॉट्स वालों का, जो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और सोशलिस्ट और दूसरे पॉलिटिकल थॉट्स वाले थे, उनकी तरफ उंगली उठा के कहा ये लाओ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक के नुकसान देखिए. इसके बाद 1919 की और 1921 इसके अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन बुरी तरह से हो गया था, और वहाँ की जो करेंसी मार्क है
वो एकदम से फेल डाउन हो गई। फेल डाउन होने के कारण पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. What do you mean by political radicalism? As and when there is a worse situation of the government, so many other political thought people, they started to make demand for the change of the government. You know, it is a turmoil situation. This government also should be changed because this government lost the war. This government had to give lot of money, lot of other thing, mineral to the other countries due to the Warsaw Treaty. So there should be change. Then what happened? The coalition government come into existence. Coalition means all the oppositions as well as the ruling party, they all become the minister and they all rule over this Germany. And there was also the continuous in the year 1921 to 21 to 24, there was the economic crisis prevailed in the whole Germany. The value of the mark fell down in such a way that in that very situation, government did the mistake that they published lot of currencies. When they published lot of currency, lakh and crores, millions, trillions times, the mark was fell down in comparison to with American dollar. For purchasing the small bag of the food, wheat, one will have to spend lot of money. That is the cart full of the money. यानी एक पूरी की पूरी जो है बैलगाड़ी के अंदर पैसा लेके जाना पड़ता था एक कट्टा गेहूं के लिए. और वेजेज भी इतने बढ़ गए थे. जब उनके पास पैसा होगा तभी तो कार्ट लेके जाएंगे. वेजेज भी इतने बढ़ गए थे कि उनको जो है कार्टून भर भर करके उनको मजदूरों को वेजेस दिए गए थे. ऐसी स्थिति को देख रही थी पूरी दुनिया. इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं. हाइपर इन्फ्लेशन यानी इतना इन्फ्लेशन हो गया, पैसे की वैल्यू कम और इनके कमोडिटीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए. इस हाइपर इन्फ्लेशन को किसने रोका? इसकी अमेरिका की हेल्प से रोका गया. उसके बाद क्या हुआ? द ईयर ऑफ डिप्रेशन शुरू हो गया. 1930 1929 पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है क्या हो गया? आपका डिप्रेशन. जिस समय डिप्रेशन आता है इकोनॉमिक, क्या होता है? सीधी सी 3-4 पॉइंट है. आपके 9th क्लास में भी ये काम आएगी कि जब पूरे वर्ल्ड के अंदर डिप्रेशन हो जाता है तो कौन कौन सी चीजें होती है? एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट, these peasants or the farmer could not get the right value of their product. Peasants जो है अपना right value of harvest नहीं ले पाते हैं. उनकी फसल का दाम अच्छा नहीं मिल पाता है, पहली बात. दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट बुरी तरह से हो जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट बुरी तरह से होने के बाद में फैक्ट्रीज और ये जितने भी है शट डाउन हो जाती है. जब अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ये शट डाउन हुआ और जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज के एकदम से रेज हो जाते हैं प्राइसेस. बैंक कोलैप्स हो जाते हैं. यानी और जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह है वो सब फॉल डाउन हो जाती है, फेल डाउन, कोलैप्स हो जाती है, बंद से हो जाती है. तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट. ये वाले ही पॉइंट आपके 9th के अंदर या 10th में जब कभी व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन, राइट डाउन दिस 3 और द 4 पॉइंट, you will get the marks. So these are the results of the depression. In that very depression, what happened in America? अमेरिका के अंदर भी यही बात हुई जो अभी एकदम से आपको बताई गई.
और जितना भी शेयर मार्केट है वो एकदम से फॉल डाउन हो जाता है। ऐसे क्राइसिस के टाइम में के अंदर एक 1889 में पैदा हुआ व्यक्ति हिटलर, उसने धीरे 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 पहले तो बेवर के ऊपर अपना अधिकार रूलिंग करने के लिए उसने ट्राई किया, उसके ऊपर ट्रीजन यानी देश के विरुद्ध वाला मुकदमा हुआ, उससे बच गया। उसके बाद में नाजी पार्टी को बहुत शानदार तरीके से उसने बढ़ाया, नाजी पार्टी को इतना स्ट्रांग कर दिया उसने कि आखिरकार में उसको जो है वहां के प्रेसिडेंट ने, हेम्सबर्ग ने कहा कि आप चांसलर बनिए। तो इन द ईयर 1930, 30th of January 1930, he became the chancellor. Chancellor has the equal right which is possessed by the Prime Minister of Indian democracy. इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के पावर होते हैं वो जर्मन के चांसलर के होते हैं। उसने सबसे पहले आते ही क्या किया, वहां के फंडामेंटल राइट खत्म किए। जो इसके आर्क एनिमीज थे, कम्युनिस्ट, जूस, जिप्सीज, पोलैंड, subjects of the Poland, that is citizens of the Poland, अपोजिशन पार्टी को जितने भी थे कम्युनिस्ट जो आर्क एनिमीज कहलाए, उनके ऊपर जो है गेस्टोपा एक सीक्रेट लॉ बना दिया गया। एक स्पेशल पुलिस उनको अरेस्ट करके ज्यादातर जेलों के अंदर ही रखा और कहीं भी कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते थे। इसीलिए इसका नाम दिया डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। सब चीजों को सस्पेंड कर दिया। जैसे इमरजेंसी अपने इंडिया में लगी थी 1977 में, 1975 के अंदर क्या हुआ था 1975 में कि कोर्ट में कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट जिसका इन्फ्रिंज हो रहा है, जिसको बिना कारण से अरेस्ट करके और जेल में रखा जा रहा है, दे कैन नॉट मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद में सब चीज सस्पेंड हो जाती है। इवन द पर्सन कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर सेविंग देयर फंडामेंटल राइट्स। ये की स्थिति यहां पे हो गई। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब पूरे लोगों की निगाहें थी, अरे क्या हो रहा है, जूज को पकड़ पकड़ के कहां रख रहे हैं, बोले ये तो इस तरह की कौम है जो सिर्फ पैसों के लिए जीती है और इनका काम ध्येय ये बस पैसा बनाओ। ये हमारी रेस, हमारी प्रजाति से बिल्कुल नीची प्रजाति है। जितने भी स्कूल्स थे वहां पे ये डायरेक्शन दे दिया गया कि इन जूज के बच्चों के साथ में अपने बच्चे नहीं खेलने चाहिए। देयर शुड बी द सेग्रीगेशन। और कंसंट्रेशन कैंप के अंदर इनको वहां ले जा करके गैस चैम्बर में मारा गया। इतनी इनह्यूमन एक्टिविटीज हुई थी कि पूरा वर्ल्ड भौचक्का था। और ये चीज सेंसर और होती थी क्योंकि उस समय प्रोपेगेंडा होता था। दे वर नॉट डिक्लेयर, द गवर्नमेंट डिड नॉट डिक्लेयर दैट वी आर किलिंग देम। उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ने क्या हो रहा है कि भाई इनका डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, इनका फाइनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस तरह के वर्ड्स को काम में लेकर के कंसंट्रेशन कैंप में इनके साथ ज्यादतियां की गई थी और इनको किल किया गया था। यहां तक कि कंसंट्रेशन कैंप में ऐसा बताते हैं कि धूप के अंदर और इतनी सर्दी के अंदर चारों तरफ से फेंसिंग, तारबंदी होती थी और भूखे मार करके और इनको भगाया जाता था। तो कितने भूख से ही मर जाते थे। तो जितने भी पोलैंड के सिटीजन्स थे, कम्युनिस्ट थे, जो आर्क एनिमी ज्यूज थे, इन सब लोगों को इसी तरह से मारा गया और इसी तरह से 3rd डिग्री का ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हुआ। अब उन दिनों के अंदर क्योंकि ये एक ही वॉज इलोक्वेंट वॉक, बहुत शानदार तरीके के जो है
ये एंकर थे, एक स्वास्थ्य का निशान था और तालियों की घड़घड़ाहट से इनका स्वागत होता था। यूथ इनकी तरफ इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे कि जहां कहीं भी पब्लिक मीटिंग होती थी इनकी वाहवाही होती थी। और हिटलर एक ऐसा नाम हो गया था, पूरा वर्ल्ड अच्छी तरह से देख रहा था यार, इन व्हाट वे ही इज हैंडलिंग ऑल द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द जर्मन गवर्नमेंट इन सच ए वे, इकोनॉमिक उठ रही है। इन्होंने सब यूथ को, जितने भी यूथ थे उनको सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया। वॉक्सवैगन जो आपकी कार है उनका निर्माण भी उसी समय हुआ, रोड वगैरह डेवलप हुए और शानदार तरीके से जर्मन बढ़ गया था। उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है उनकी तारीफ की थी। अब इसके बाद में ये घमंड बढ़ने के बाद पहला स्टेप क्या किया, अपनी नेबरिंग कंट्री जो भी थी, जैसे ऑस्ट्रिया था, पोलैंड का कुछ हिस्सा था और सेडेमेंट जो चेकोस्लोवाकिया का कुछ हिस्सा था जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, उस सबको अपनी कंट्री में मिला दिया कि अपना एक ही राजा होना चाहिए, आई एम योर रूलर, एंड ऑल such type of the territories were annexed with German. अब इसमें विस्तारवाद की रीजन आ गया कि अब चलो फैलाइए अपन। एक सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हिटलर ने क्या की थी, अभी अभी बताने जा रहा हूं मैं। वो गलती ये की थी कि इनका एक इकोनॉमिक एडवाइजर था जिसका नाम है हेल्मर सेस्ट। देखिए, ये हेल्मर सेस्ट इज द प्रोनाउंसिएशन, बट द स्पेलिंग ऑफ दिस इज HJALMARSCHACST। ये इनके इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे। इन्होंने व्हाट ही एडवाइज, सर बहुत मुश्किल से अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधरी है, आप एक बहुत बड़ा गलत कदम ले रहे हैं रीआर्मामेंट का। रीआर्मामेंट मतलब वापस से आप युद्ध के लिए बड़े बड़े जो है आर्सेनल्स, युद्ध के सामान बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। दिस इज कॉल्ड द रीआर्मामेंट। इस पॉलिसी को छोड़िए, बहुत मुश्किल से इकोनॉमिक स्थिति सुधरी है, बोले शांत रहिए, इसको खुद को ही हटा दिया गया। समझ लीजिए इसका विनाश होना शुरू हो गया। उनको हटाने के बाद में 1941 के अंदर, 1931 में डिक्लेयर हो गया था वार। जर्मन के साथ में इटली के साथ में जापान, 3 ट्रीपार्टाइट ये हो गए थे। और उधर वो पावर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सब बाद में आया। उसके पहले जो है ये जितने भी थे एलाइड कंट्रीज, वो सब मिलके युद्ध शुरू हो गया, जिसमें रशिया भी शामिल था। एक सबसे बड़ी गलती क्या की थी 1941 में, ये अटैक्ड रशिया की रेड आर्मी ने ये हालत की थी कि पछाड़ते हुए बर्लिन तक इसको ले गए और बुरी तरह से हार हुई। और आपको अगर मालूम हो तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर ही अमेरिका के जहाजी बेड़े के अंदर ऊपर जब बम वर्षा की थी जापान ने, तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम भी उसी समय ड्रॉप हुआ था। तो ये सब घटना आपके इन्हीं हिटलर साहब के कारण ही हुई। ही बिगेन द वॉर, ही फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक्ड ऑन रशिया, देन आफ्टर so many other countries entered into the second world war. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ज्यादा सिविलियन मरे थे, बैटल करने वाले वो कम मरे थे। ये आपका 10th की हिस्ट्री के अंदर है, लेकिन पहले ही बता देता हूं। अब देखिए, ऐसी बात हो जाने के बाद में नाजी वर्ल्ड व्यू, हार भी मिल गई। हार जाने के बाद में इन्होंने जो है सरेंडर हो गए। सरेंडर होने के बाद क्या क्या घटना चक्र होता है ये देखिए आप, कि इसमें फर्स्ट पेज पे आ रहा हूं, इस चैप्टर का फर्स्ट पेज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हेलमुट नाम का लड़का है,
वो अपने पेरेंट्स की बात सुन लेता है, ओवरहेड करता है। भले अपन सुसाइड कर लेंगे, इसको खाने में जहर दे देंगे, देन ही विल डाई। उस बच्चे ने 9 साल तक अपनी माँ का बना हुआ खाना नहीं खाया। कितनी बड़ी बात थी ये। और इसका किस तरह से डिमाइस हुआ था पूरी। हेमत के फादर जो है, हेमूद के फादर क्या थे? डॉक्टर थे। और इनके हिटलर के कहने पर उसने 70,000 ज्यादा से ज्यादा 70,000 डिसेबल्ड पर्सन्स को ऐसा इंजेक्शन दिया कि मर जाए। डिसेबल्ड को गवर्नमेंट पालती है और इन्होंने उल्टा किया और हमारी जाति के अंदर कमी, हमारे रेस में अंदर कमी नहीं हो जाए, हमारी जनता है उसके अंदर डिसेबल्ड लोग ज्यादा नहीं हो जाए। जितने बेचारे मेंटल रिटार्डेड थे, अंधे थे, हाथ पैरों से वो थे, उन सबको मारने के अंदर हेमत के फादर का और किसने? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल न्यूरेमबर्ग ने डिक्लेयर कर दिया कि हम ऐसे लोगों को तो फांसी देंगे कि जो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल हैं इस तरह की जीनोसाइड के, यानी सब तरह के लोगों को मारने में। तो इस व्यक्ति ने, हेमत के फादर ने, लास्ट दिनों के अंदर, लास्ट डे के अंदर एक वुड फॉरेस्ट में ले गए, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय किया और वहां पे ऐसे गाने वगैरह चलाए कि ये बच्चा भी खुश हो गया। लेकिन बच्चे के दिमाग में ये ट्रोमेटाइज फीलिंग भी थी कि मुझे मारेंगे ये, अभी तो खुशी हो रही है। फिर बाद में अपने ऑफिस में उसने सुसाइड किया था, उसकी वर्दी खून से रंग गई थी और वो उस बच्चे ने दृश्य देखे थे। उस बच्चे के द्वारा कही हुई बातें ही आपके फर्स्ट पेज में लिखी गई है। दूसरी घटना क्या हुई कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गेबल, उसने भी सुसाइड कर ली थी बर्लिन के बैंकर के अंदर विद फैमिली, क्योंकि उसको भी डर था कि मुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के न्यूरेमबर्ग ने 11 लोगों को फांसी डिक्लेयर की थी जर्मन के, जो हिटलर से बिल्कुल अटैच थे। और कई लोगों को जो है कितनी जेल हुई, लाइफ टाइम की, क्योंकि ये लोग कितनी हत्याओं के जिम्मेदार थे। उसके अंदर 6 मिलियन पीपल, 60 मिलियन पीपल के लोगों के जिम्मेदार थे, जिसके अंदर ज्यूज 6 मिलियन थे, जिप्सीज थे, पोलैंड सिटीजन्स थे और डिसेबल्ड 70,000 डिसेबल्ड ऑफ जर्मन पीपल थे। तो कुल मिलाकर के ऐसी जो भयावह स्थिति है वो पैदा किसके द्वारा की गई थी? वो हिटलर के द्वारा की गई थी। पूरे इसी के इंस्ट्रक्शंस पे सब काम चल रहा था। अब यहाँ एक डिस्कशन और किया जा रहा है कि अपने जीवन, ये जो इस तरह की नीतियां वगैरह बनाई थी, प्रिंसिपल्स तो थे, वो क्यों थे ऐसे? प्रिंसिपल्स ऐसे होने के कारण क्या थे? तो नाजीज वर्ल्ड व्यू, दुनिया के बारे में बोले, दुनिया को मैं जीतना चाहता हूं, हमारी रेस नीली आंख वाले और तंदुरुस्त होने चाहिए। जितने भी मदर्स थी जर्मन की, उनको कह दिया कि आप जितना अच्छे तगड़े जो है बच्चे आप पैदा करोगे तो आपको अलग तरह से अवार्ड मिलेगा। दूसरा, इन ज्यूज से अलग रखो। दूसरी बात क्या की थी कि हम डार्विन और दूसरे एक साइंटिस्ट है उनके सिद्धांतों पे चलते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बिल्कुल फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी वो खत्म करो। इसीलिए डिसेबल्ड लोगों को इस तरह से मारा है। बोले उसने वहां के उन साइंटिस्ट के सिद्धांतों को यहाँ रेसेस पे, अलग अलग प्रजातियों पर थोप दिया, अपनी तरफ से अलग सिद्धांत बना दिए जो डार्विन और दूसरे साइंटिस्ट ने किया था। अब ये कंसंट्रेशन कैंप के अंदर बहुत सारी चीजें लीक हुई, हालांकि सेंसर तो करने की पूरी कोशिश की थी। इसलिए आपने चित्र भी देखे होंगे, गैस चैम्बर है, उसके पास में उनके शूज वगैरह उतरे हुए हैं, चारों तरफ से फेंसेस वगैरह देखे होंगे। इतनी क्रूअल्टी
इतना थर्ड डिग्री टॉर्चर देखने को मिला, और जूस से इतने ज्यादा नफरत करते थे कि उनको एक गेटोज, एक अलग ही जगह थी, वहीं पे उनको रहने दिया जाता था, और कहा था कि इनको सिर्फ पैसा ही मत है, एक पैसे की बोरी के ऊपर एक जूस बैठा हुआ, बोले पैसा इनके लिए भगवान है, इसके अलावा कोई इनका सिद्धांत नहीं है। ही वॉज हेट्रेड विद द जूज इन सच ए वे। तो जूज को मारने के अंदर सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं का ही है। इसके बाद यूथ इन नाजी जर्मनी के बारे में आपको बता दिया, और आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के बारे में बता दिया कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स जो है उन्होंने किस ढंग से कोड वर्ड के अंदर वो ये बताते थे कि हम इनको मार नहीं रहे हैं, हम इनका डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, हम इनका फाइनल सॉल्यूशन कर रहे हैं। इन सच ए वे ही टॉर्चर्ड, ही किल्ड लॉट ऑफ पीपल, और इसके कारण ही न्यूरेमबर्ग में इसको इतनी सजा दी गई थी, और इनसे जुड़े हुए जितने भी दूसरे लोग थे उनको ये सजा दी गई थी। नाउ थैंक यू फॉर लर्निंग दिस नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि इसमें किस तरह के ज्यादा सवाल आएंगे। देखिए 9th क्लास या 10th क्लास आप लोग इमेच्योर हैं, जो बिल्कुल क्रूअल चीजें हैं, जैसे कंसंट्रेशन कैंप की, किस तरह से कंसंट्रेशन कैंप में इनको थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता था, ऐसी चीजें पूछने के बजाय ज्यादा चीजें कौन सी पूछी जाएगी आपके, एक तो इफेक्ट, ये बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, कैसे बर्थ हुआ, कि उसने नेशनल असेंबली ने तय किया कि राजाओं का राज तो समाप्त होता है, चलिए अब हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद बेचारे वेमर को कह दिया चल तो ही इसको रन करो, रूल करो। वो रूल क्या करेगा, ऐसी वार के जस्ट बाद कैसी देश की स्थिति होती है। तो इन दैट वेरी बैड वर्स सिचुएशन वेमर हैव टू रूल्ड ओवर द जर्मनी, और बदनामी भी मिली, और जितना भी वो कहते हैं ना कि जितना बुराई का ठेकड़ा उस पर पड़ा, गलती किसने की और बुराई इसको मिली। 1914 के अंदर आपकी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, 1980 के अंदर 18 के अंदर नवंबर में डिक्लेयर हो जाता है, ये डिफीट हो गई, और इसका वेमर रिपब्लिक भी उसी टाइम एस्टेब्लिश हुई, और कह रहे हैं इसके कारण हुआ। जर्मन की अभी स्थिति पूरी इसके कारण भी गई, यहाँ की इंडस्ट्रीज, यहाँ का डिप्रेशन वगैरह सब इसके कारण हुआ। दूसरी ईयर ऑफ डिप्रेशन के बारे में भी आपको बताया, किस तरह से कार्ड भरा हुआ वो जो है मार्क, कितना बहुत ज्यादा ये पब्लिश करने के कारण इनकी स्थिति ऐसी हुई, कार्ड भरा हुआ वो लेकर के, और एक आधा बैग जो है व्हीट मिलता था, इसके ऊपर भी दिस इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेमेशन। फिर उस आप हिटलर जो है किस तरह से डेमोक्रेसी को तहस नहस की, इन व्हाट वे ही डिस्टॉर्टेड द दिस डेमोक्रेसी, इसके बारे में भी आपको जो है कुछ बताया जा सकता है। नाउ थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस important chapter, Nazism and the Rise of Hitler.